As a part of next episode, we are here in the Department of School of Physiotherapy. I am sitting with Dr. Shilpa Jain. She is a SOD, School of Physiotherapy. Let's start with the question. We are here to discuss about the present scenario, outbreak of pandemic COVID-19, and there are very challenges how to fight and how to save ourselves and the others. In that context, we would like to know, as a expert in your field, what are the ways to manage the COVID patient and what are the activities being done by your department, that is a Delhi School of Pharmaceutical Sciences and Research University, and this is also one of the deputy university in the India. So what will your explanation and your answer in that context? So very well said by you. Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University. It is the first pharmacy university in India and probably the third in the world. But being in School of Physiotherapy, first I would like you to know what physiotherapy is. You know, physiotherapy is a healthcare profession concerned with human function and movement to maintain their physical potential. It is mainly concerned to identify and maximize quality of life by promoting, preventing, intervening and rehabilitation based upon the clinical judgment and interpretation of information that the therapist bears, and by he also bears the information by using all the physical means, using electrical currents, hydrotherapy, electrotherapy, laser, sound, light, etc. Many physical means are there. So it involves all the holistic approaches to prevent, diagnose and also for the therapeutic management of pain, disorders of the movements, and we can say the optimization of the function to enhance the the health and welfare for the community. Here is a one point. Suppose one who has a symptomatic case, it means those those type of person, they don't have basic symptoms of coronavirus, but they are the hidden symptoms of the corona. In that circumstances, how your physiotherapy would help to treat him? See, sir, this is a very complicated thing in India which we are seeing. Asymptomatic patients are like, they do not even show their any kind of breathlessness, even no cold, cough, nothing like that, and suddenly they collapse. So in that scenario, we can ask everyone for by taking preventive measures, just do deep breathing exercises, lung expansion exercises, try to attain and practice such postures which give you comfort, and do exercises. See, there are so many literatures which say exercise boosts up your immunity, which speeds up the inflammatory process, and finally landed up to the healing things. So in that thing, we can ask everyone to do exercise daily. And being in this university and School of Physiotherapy has taken many steps. We have to cope up such challenges for coping with physical and mental stress during lockdown for our students as well as for our faculty staff members. We formulated one series of management, or we can say exercise programs, in which there was series of exercises. For day one, like we went for cervical pain, second day we went for shoulder pain, third day we went for core, or we can say low back pain. Series of exercises were there, and especially for maintaining their flexibility and focusing on building their strength also. So in that way, DIPSRU School of Physiotherapy, we can say. But here is one of the problem. Suppose कर लिए अगर कोरोना अगर कोई पेशेंट जैसे मिलता है, तो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, वो पहले किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, अपने आप को रजिस्टर कराएगा, फिर उसको गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी व्हाटएवर ही वांट टू गो. तो ऐसे केस में जब तक आप उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, तो वैसे में उनको फिजियोलॉजी के लिए, फिजिकल थेरेपी के लिए क्यों आएंगे पहले?
एक पहला 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 पॉइंट है। ठीक है। दूसरा, अभी कोरोना में कोई ऐसा केस डिटेक्ट नहीं हुआ है जिसको बाद में डिटेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट की ओर से अप्रोच किया गया हो कि आप फिजियोथेरेपी जाइए, वहाँ कराइए, और ये सब जो आपके सिम्टम्स उभर कर आ रहे हैं वैसे करने से आपको राहत मिलेगी, आपका बॉडी एक पेन होगा, पेन हेडेक नहीं होगा, या जो भी पेन्स हैं वो मिनिमाइज होंगे और उससे कोरोना के कम होने के चांसेस के आसार ज़्यादा होंगे। इसमें अपने आप को जस्टिफाई करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक हम इसमें कोविड-19 इन्फेक्शन में ये कहेंगे, एक है एक्यूट रिहैबिलिटेशन फेज़। एक्यूट रिहैबिलिटेशन फेज़ चाहे वो पेशेंट आईसीयू में है या क्वारंटीन एरिया में है, उसको उस वक्त पर भी ब्रेथलेसनेस 3 से 4 दिन के बाद जब होना शुरू होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम उसको पहले ही बता देंगे कि आपको किस तरीके से लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस करनी है, डीप ब्रीदिंग कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आपको किस तरीके से और किस जगह पर करवट लेना है, ये तो वो खुद से भी कर सकता है। लेकिन जब वो आईसीयू में होता है तब उस टाइम पर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है, ड्यूरिंग जब वो ज़्यादा कफिंग नहीं कर पा रहा है, स्पूटम बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बिफोर द सक्शनिंग, तो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है कि क्लैपिंग, हैकिंग और इन सब से, वाइब्रेशन से कैसे स्पूटम को लूज आउट किया जा सके, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोल है। और सेकेंड चीज़ आती है पोस्ट एक्यूट रिहैबिलिटेशन फेज़, जिसमें पेशेंट वीन ऑफ तो हो गया वेंटिलेटर से, लेकिन जो उसकी सेकेंडरीज आ गई हैं ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, कोई इतने दिनों तक 12 से 14 दिन तक या 20 दिनों तक जितने दिन भी पेशेंट अगर आईसीयू में रहा है, एक तो वेंटिलेटर से वीन ऑफ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज़, इतने दिनों तक जो इमोबिलाइज्ड स्टेट में रहा है उसके कारण जो भी दिक्कत आई है। और थर्ड थिंग, जैसा हमारे वाइस चांसलर सर ने भी बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉट ओनली अफेक्टिंग द लंग्स बट टू ब्रेन ऑल्सो, पेशेंट्स आर गेटिंग स्ट्रोक। जो सर्वाइवर्स हैं, सपोज अगर उनमें स्ट्रोक आ गया है तो उनकी सेकेंडरीज को डील करने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट का डायरेक्ट ही कोरोना पेशेंट के साथ बहुत बड़ा रोल कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस आया है जिसको कोरोना डिटेक्ट होने के बाद किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या अदर एजेंसी से आपको रेफर किया गया हो, चाहे डिप्सरू का, चूँकि डिप्सरू इज आल्सो पार्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और उसमें आपका एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ हो कि आपने उसको सजेशन दिया हो या आपने कुछ उसको टेक्निकल सपोर्ट किया हो सो दैट इज गोइंग टू क्योर एंड हैव डन क्योरिटी? सर अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा रेफर्ड केस नहीं आया है और सेल्फ रेफर्ड केस भी कोई नहीं आया है। हाँ, डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर कोई भी आता है तो हम उसकी पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट डिप्सरू, basically Department of Radiology is doing its level best to rectify the corona patients for the future percept? See, sir, we as a university are working as a team here. We have masters in public health also, so they are themselves creating too much awareness टू कोप अप विद दिस कोरोना और कोविड इन्फेक्शन एक्टिविटीज़ और जो भी उनके साथ चीज़ें उन्होंने सफ़र किया है, तो हम जो भी काम करेंगे एज अ टीम ही काम करेंगे। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे। अगर कोई हमें ऐसा कोरोना सर्वाइवर मिलता है जिसको कुछ भी सिम्टम रहता है, जो कि अभी भी कोई ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोरोना सर्वाइवर जो है उसको रेजिडुअल कोई भी मसल एक, बॉडी एक रहा हो या बाद में ब्रेथलेसनेस कुछ ऐसा रहा हो। हाँ, थोड़ा वीकनेस तो डेफिनेटली आता है, तो उसके लिए हम उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बिल्डअप का काम कर सकते हैं। भारत में जब से कोरोना का संक्रमण हुआ, जब से शुरुआत हुई थी और आज तक पूरे इस अवधि में क्या ऐसा कोई भी केस आया हो जिसको आपके डिपार्टमेंट ने टैकल किया हो या कोई सजेशंस आपसे शॉर्ट की हो और उसको घर में जाके उन्होंने उपयोग किया हो, इस्तेमाल किया हो, जिसके सहारे उसके कोरोना के जो डेवलप होने वाले सिस्टम है उसमें कोई कमी आई हो? ऐसा कोई केस आया आपके पास? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, टेलीमेडिसिन या टेली रिहैबिलिटेशन को बहुत बड़ा एक चांस मिला है। लोगों ने वेबिनार्स के थ्रू
या फिर जो टेली रिहेबिलिटेशन हम कहते हैं, टेली मेडिसिन कहते हैं, उसके थ्रू बहुत सारी एडवाइसेस जो है कंसल्टेंट से लेना या फिजियोथेरेपिस्ट से लेना शुरू किया है। हाँ, डेफिनेटली अभी तक हमारे पास ऐसा कोई यूँ केस नहीं आया है, लेकिन हाँ, अदर देन कोरोना और कोविड इन्फेक्शन या रेजिडुअल कुछ भी सेकेंडरीज हो, उस अदर देन दैट थिंग हमने डेफिनेटली टेली रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया है। As a part of preparedness for the fighting against the coronavirus, what are the main activities right now by which one can get very pure system of the COVID-19? सर, ये तो हमारे मिनिस्ट्री से भी रोज़ ही गाइडलाइंस आ ही रही हैं। जो गाइडलाइंस वहाँ से हमें मिलेंगी डेफिनेटली हम लोग वही फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। Can you list out any part of the guidelines so that we can air to our viewers कि DIPSRO is doing the level based to find out the problems? जो भी MHA की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं डेफिनेटली DIPSRO तो फॉलो करेगा ही, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जिनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग एक कॉमन पैरामीटर है कोविड से फाइट करने का। हमें आपका आंसर चाहिए, आपके डिपार्टमेंट के लेवल पे क्या ऐसी गाइडलाइन थी जिसको आप इजाद करते हुए कोरोना के मरीजों को ढूंढने में आपके या इलाज करने में आप लोग को एक अचीवमेंट हासिल हुआ? सर, टेली रिहेबिलिटेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आज के वक्त पर जैसे आरोग्य सेतु ऐप तो सभी लोग डाउनलोड करके रखते ही हैं। उसमें आपके डिपार्टमेंट का कोई अचीवमेंट? वो एक गवर्नमेंट का अचीवमेंट। गवर्नमेंट का अचीवमेंट हम तो आपके फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की ओर से कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं कि आपने उसमें क्या अपने रोल को असिस्ट किया हो। सर, हमारे DTTE के डायरेक्टर हैं श्री SS गिल जी, तो उनको हम लोगों ने टेली रिहेबिलिटेशन के थ्रू जो है प्रोवाइड किया, और डेफिनेटली उनको रिजल्ट भी बहुत व्हाट इज अच्छे द मिले। टेली रिहैबिलिटेशन? टेली रिहेबिलिटेशन बेसिकली सर, जैसे हाउ वुड यू कनेक्ट टू अदर्स वन? सर, थ्रू वीडियो कॉल्स, थ्रू टेलीफोनिक कॉल्स, थ्रू इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज। हाउ वन शुड अवेयर द DIPSRO is doing such activities to find out the coronavirus? Yes, we are in this way to create awareness through this thing that we are providing tele rehabilitation also, but this thing cannot be done in one day. This thing can be done through social media or digital things only, and through mouth Is publicity. it equal to the Arogya Setu No, not at all. Not to at all. finding the cases and solve the problems? हाँ, if some In patients, that context, if some patient comes to us and Arogya Setu apps tells us कि that patient is having corona or COVID infection or up to risk. Suppose I am suffering from, going to suffer, or I have the hidden symptoms of the coronavirus. How should I attach with your tele rehabilitation therapy so that I can get aware and going through your treatment? Sir, for that thing, first you should contact your physician or doctor first, and what I told you before, that acute rehabilitation phase, I can tell you about what you can do during your breathlessness phase or during your immobilization phase, or whenever you feel your body aches or muscle ache at that time. I can tell you only that thing. Rest of the solution can be received or achieved by your To doctor approach only. your such therapy, is there any social media group or any email ID or WhatsApp so that one should get contact and get and avail the? Sir, we will provide you later on. आपको क्या लगता है कि जो आपका ये भी एक अचीवमेंट है कि आपके डिपार्टमेंट खास करके फिजियोथेरेपी ने कोविड के केसेस को फाइंड आउट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट को सरल बनाने के दिशा में एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोसाइटी को? ओके, इसमें अगर मैं बहुत ही साइंटिफिक बात बताऊं तो पहली बात आती है कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर बात हो गई है। मोर देन 65 ईयर्स। दूसरी बात ये भी आई है कि इम्यूनिटी भी एक चीज़ है। अब एक चीज़ आती है कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि द इम्यूनिटी विच डेवलप्स, विच इज़ एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी because of the physical exercises or something like physical exercises, something like proper food, nutrition, micronutrients, they help in the herd immunity. अब उसमें
जब लॉकडाउन हुआ पहला और सेकंड राउंड, जब बोल दिया गया था कि आप बाहर घर के नहीं निकलोगे, बुजुर्ग भी है कोई भी, ये फोर्थ लॉकडाउन में पहली बार कहा कि भाई आप पार्क में भी थोड़ा घूमना शुरू करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी दैट इम्यूनिटी विल बी गोइंग डाउन इन ओल्ड एज पेशेंट्स ऑल्सो। अब ऐसे में उनको मैसेज देना कि घर बैठे on the instructions of the experts like physiotherapist or the gym experts, you can do exercise. So one of our student of the WCSC, World Skills Development Center, he showed the desire that can we do it a program wherein we try to give this online, I mean we are trying to, like Ramdev is giving on the TV, so can we give it by the web? And you can have direct questions and you can directly instruct. So can we have it as a program? And that's what started. So are the public are getting connected? Yes, in I the mean, larger see, way? it is like we circulate it to our group. We try to circulate in the, but like it has to catch now that yes, there are some trainers like that directly. So maybe, as I am thinking that in future there may be online universities also. So do you have any statistics how much public get connected with your It was 60 people connected at that time. Now this is an experiment going on. So maybe physiotherapists sitting at home will be directly consulting one-to-one basis also, as she mentioned, one of the, family member of our directors, she was to be given, otherwise the condition will worsen. So online she could tell family members ki please do this exercise like this, try to have it like this. So that is something which, like many times it happens that the physiotherapy patient are immobile also, they cannot be taken to the OPD also. Now this is opening a new vista by itself, that okay, can we do it like this? See, वो आवश्यकता अन्वेषण की जर्नी है, वो हम जानते हैं। Sir, keeping role of physiotherapist हाँ. in mind, हाँ, how Dipsru as a vice chancellor, you are empowering your school of physiotherapy हाँ, to get the manpower more and more, to run the activities more and more. okay. See, physiotherapy is a part of now pharmacy university. It is health university. So, in a way, see, physiotherapy also need pharmacotherapy. Pharmacotherapy also need physiotherapy. Both are Orthopedician, complement to each other. both are complementary. Even the orthopedician cannot do anything without physiotherapy. Even after heart surgery, there is a cardiothoracic physiotherapy. जो आपने दिखाया होगा शायद पूरी, जो अगर डिटेल देखी होंगी तो अलग अलग डिविजन्स जो है हमारे फिजियोथेरेपी में। सी देयर आर न्यूरो फिजियोथेरेपी, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपी, ऑब्स्ट्रेक्ट एंड गायनेकोलॉजी फिजियोथेरेपी, तो अलग अलग डिविजन्स हैं। और न्यूरोलॉजी में भी जो हमने यहाँ पर सबसे पहला कदम जो उठाया हमने, कि जब ये फिजियोथेरेपी थी तो मुझे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि ये फार्मेसी में फिजियोथेरेपी का क्या काम, What is the role of? इसका रोल क्या है। हमने बताया कि नहीं, इट इज़ दे वेरी मच देयर हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ, अगर फाइबर आप वो कोई डिवाइस बना रहे हो तो उसकी CDSCO यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल की ही परमिशन लेनी होगी। डायग्नोस्टिक कर रहे हो तो उसकी भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लेनी होगी। तो इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर। सो फार्मेसी को खाली एक दवाओं पर मत रखिए, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात, जब यहाँ पर OPD खुली, हमने कभी कोई चार्ज लिया नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट ए कॉमर्शियल वेंचर। हम तो टीचिंग में चाहते थे, तो बहुत कम पेशेंट आते थे। जब ज्वाइन किया था 2015-16 में, उसके बाद में 1 साल तक ऐसे कम आए। जब हमने ये सारा फिजियोथेरेपी का ज्ञान, उसके जो पोस्टर्स लगाए हमारे यहाँ, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी नंबर वो सीधा पहले 100 के करीब आते थे, सीधा 600-700 के ऊपर पहुंच गया है पर मंथ राइट नाउ। ये एक रियलिटी है। हाँ, अभी लॉकडाउन में बंद हुआ, कम हुआ, हमने थोड़ा मिसयूज़ ना हो इसके लिए चार्ज भी बहुत 10 रुपये 20 रुपये को चार्ज रखा है। वो ऐसा कुछ चार्ज भी नहीं रखा हमने, जस्ट टू सी दैट द इम्पोर्टेंस इज़ देयर इन दैट। तो हम उस तरह से तो कर ही रहे हैं। तो अब
सो इन जनरल अगर देखने जाओ तो फिजियोथेरापी एक अभिनव जो एक कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे सेरिब्रल पाल्सी के लिए कैसे इंटरवेंशन किए जाए और उसमें हमारी फार्माकोलॉजी की नॉलेज भी काम आए। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लिया गया है जिसमें ये डॉक्टर शिल्पा ने लिया है कि जब एक हार्ट में बताया गया कि हार्ट मसल्स में एक पायरोप्टोसिस हो जाता है, यानी डैमेज ऑफ द सेल्स होता है, तो उसी के चलते कुछ दवाएं भी आती हैं। तो एक जो इनकी जो थेरापीज़ हैं उसमें मसल को पहले एक्साइट कर दिया जाता है और फिर वो रिलैक्स हो जाती है, और इनकी कई थेरापी में यही प्रिंसिपल आता है बीच में। उसका हमने एक पेटेंट अभी फाइल किया है कि यस, प्रोविजनल पेटेंट है, हम उसकी और स्टडी करके फाइनल पेटेंट करेंगे कि यस दिस इज़ अ मैकेनिज़्म, एक दवा थी जो सिर्फ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। हम इस तरह का फॉर्मुलेशन बनाएंगे जो फिजियोथेरापी में काम आएगी और फिजियोथेरापिस्ट के थ्रू ही आएगी, नॉट कि जैसे कोई बाम लगा सर ये प्री और पोस्ट कोविड दोनों पेशेंट के लिए काम करता है। सी कोविड एक ऐसी चीज़ है, कोविड एक सिचुएशन आई है, तो कोविड में जो मैंने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी का है या जो लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम आई है उनको मदद करने के लिए एक डिस्टेंट मोड पे क्या कर सकते हैं, वो एक नई चीज़ हमने यहाँ दी है। इसके अलावा उसके बियॉन्ड फिजियोथेरापी का रोल नहीं है। तो अभी सर असिस्टमेंट के रूप में आप सिर्फ टेली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन थेरेपी के जरिए आप अवेयर कर रहे हैं। यस, और एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, अब एक तरह से हम इसको एक्सपांड करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में लाएंगे। तो इसकी ओर से आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उससे कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए गवर्नमेंट तो ऐसा है कि नॉट इन द टर्म्स ऑफ गेटिंग फंड, इन टर्म्स ऑफ टू अवेयरिंग टू द पब्लिक। नहीं, पब्लिक अवेयरनेस में हमारी गवर्नमेंट हमको यानी इट इज़ 100% एडिड, और टाइम टू टाइम हमसे पूछते रहते हैं कोई भी सपोर्ट की उनको है। पर लेकिन एक जो एक जनरल परसेप्शन है कि फार्मेसी मतलब एक दुकान या फार्मा इंडस्ट्री, वो कंसेप्ट मेरी इच्छा ये है कि मैं ये यूनिवर्सिटी के थ्रू इस कंसेप्ट को पब्लिक की नज़रों से हटा दूँ कि नहीं, फार्मेसी बहुत कुछ है और मोर यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड। सर इस कंसेप्ट को आगे इम्पावर करने और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए अब और कौन सी आपके पास वैसे रूल रेगुलेशन या कोई प्लानिंग है जिसके जरिए वन शुड गेट द रियल बेनिफिट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी? सी ऐसा है कि पहली बात तो जैसे चारों तरफ नाइपर्स भी खुले हैं, नाइपर्स का मैंडेट रिसर्च का है। अब हमारा जो फार्मेसी का है एक इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टिंग ऑल हेल्थ साइंसेस, वो इम्पोर्टेंट है। फार्मेसी जैसे मेरी एक इच्छा है, मेरा ड्रीम है कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन फार्मेसी का एक यूनिट बने, पूरी फैकल्टी अलग से, यानी पूरा एक बोलते हैं ना सॉर्ट ऑफ ए स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एज ए स्कूल ऑफ आयुर्वेदिक फार्मेसी बने। जैसे करीब 8000 यूनिट्स, एक बार मैंने सर्वे किया था, आयुर्वेद के यूनिट्स हैं, और अगर उसको कंपेयर करें कि कितने यूनिट्स एलोपैथिक के हैं, तो एलोपैथिक के जितने यूनिट हैं उसके सामने 1000 कॉलेजेस हैं फार्मेसी के, पर इन 9000 के सामने वो जो एलोपैथिक के यूनिट्स हैं वो कोई 20-25 से ज़्यादा नहीं है, 25,000 से ज़्यादा नहीं है। अब ये 9000 के सामने सिर्फ और सिर्फ लेस देन 100 या लेस देन 50 आयुर्वेद फार्मेसी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी कारण शायद आज आयुर्वेदिक की जो हम देखते हैं कि चाइनीज़ मेडिसिन और उनकी जो पैकिंग और डिज़ाइनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन है वंडरफुल आते हैं। शायद इसका इंटीग्रेशन अगर हो जाए डेफिनेटली ये आयुष और वो एकदम फास्ट तो सर स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी को सशक्त करने के हाँ। आपके पास जो पर्याप्त एडिक्वेट जो फैसिलिटीज है आप उनसे सेटिस्फाइड है या और आपका एक्सपेक्टेशन और है कि इसको और एक्सपैंड किया जाए? हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। In that term, do you satisfied with your manpower? Second, are you satisfied with your present scenario of the coming and outgoing and incoming patients, OPD? Second, facility in terms of more spaces, many cabins
so that patients sit together and get consult to each other? Answer कि yes, I am not satisfied because I am expecting much more. And लेकिन ये है कि ये 4 साल है, अभी तो पहली बैच निकले नहीं है, उस हिसाब से जो डेवलप किया है वो भी कम नहीं तो है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी आपके स्टाफ हैं स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी के या मैन पावर्स हैं, हाँ। उसके लिए आपके अनुसार कितनी रिक्वायरमेंट है? नहीं, उसके एज पर द नॉर्म्स हमारे यहाँ सफिशेंट है, बट हम जो ड्रीम करते हैं, हम जो चाहते हैं कि जिस रूप में आए, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है आगे। तो इसमें जो आपके प्रेजेंट जो HODs हैं और जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है, उसको और कितने आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको कितने आपको पढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो पहले बैचलर से शुरू होता है। पहली बैचलर की डिग्री आ गई, उसके बाद में मास्टर्स आएंगे। हर मास्टर कोर्स के साथ में नया ग्रांट, नई फैकल्टी बढ़ेगी। तो अभी हम जैसे इस बार हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी शुरू करने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दी स्पोर्ट्स साइंसेज हमारे पास उसकी फैसिलिटीज़ हैं, तो फैसिलिटी वाइज एडिक्वेट है। लेकिन अगर हम जब जैसे जैसे रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, हम तो हाई एंड इक्विपमेंट पर भी जाएंगे। सर, अपार्ट फ्रॉम कोविड, हम कोविड कोविड के बियॉन्ड ही बता रहा हूँ मैं। in the field of the sports therapy, what is your major achievement till now? जी देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये अभी पहली ही बैच आई है, उसमें कोई हार्डकोर रिसर्च है वो अभी तो स्टार्ट होना। नहीं, जैसे मैडम भी एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमसे इतनी सारी बातें बताई, अच्छी जानकारियाँ दी, लेकिन आपकी जो एक पैरामीटर है, जो आपकी अचीवमेंट है कि स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी डिप्सरू रन कर रहा है, तो उसमें जो स्पोर्ट्स जो आपका सेंटर है, उस फील्ड में आपने कोई ऐसा अहम कदम रखा हो, कंट्रीब्यूशन हो, जिससे लोगों को लगे कि ये इंडिया की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो एक बधाई के पात्र हैं, और आगे गवर्नमेंट को इसके काम और फैसिलिटेट करना चाहिए। हमें फैसिलिटेट करना है, जैसे इंजरी मैनेजमेंट सेंटर की भी हमने डिमांड की है। तो अभी क्या है कि सारे प्रोसेस में है। अभी हम ये बोलना किसी, पहली बात तो कि यहाँ पर 700 पेशेंट्स आने लगे हैं पर मंथ, और ये दैट इटसेल्फ इज ए बिग अचीवमेंट। यहाँ नहीं, मंथ पर मंथ, हर मंथ, हर यानी बिना कोई चार्ज, बिना कोई पब्लिसिटी, नॉट वेरी बिग ऑल्सो, बट लेकिन हमें जो हमको जो पर्पस जो था वो तो मोर देन दैट सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो जाए और वहाँ पर हमारी प्रेजेंस हो, और उसके अलावा उसी के रहते हम आगे बढ़ें। ये फिजियोथेरेपी भी अभी आगे काफ़ी जानी है। क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अभी? हर एक न्यूरो का अलग होगा, पेडियाट्रिक का? यस, डेफिनेटली आगे चल के तो यही होना है। अभी हमने सुना है कि आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को और एक्सपेंशन के बोर्ड में आपने कहीं जमीन प्रोक्योरमेंट करने की बात हम की है। ट्राई कर रहे हैं, वो तो पेडियाट्रिक आपका यूनिट वो हो या क्या न्यूरो ड्रीम यूनिट। क्या है, कितनी इसको ऊंचाई तक ले जाना है? हम तो चाहते हैं कि एक फुल फ्लेजेड, एक पूरा बोलते रहे कि जैसे एक मेडिकल कॉलेज होता है उसका एटलीस्ट हाफ ये ऐसा हो, या फिर डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल से हमको अटैचमेंट कर दिया जाए डायरेक्टली, वो हम पूरा यूनिटी वहाँ उठा के। हाउ मच एकर्स ऑफ लैंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? देखिए, अभी ये सब डिफाइन करना ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा बाकायदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। और दूसरा, हर चीज़ में वी डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील। एक फिजियोथेरेपी इंडिपेंडेंट यूनिट कभी नहीं चल सकता, हॉस्पिटल के साथ ही चलना है। तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो सोने पे सुहागा। Have you written to any government agency? Yes, we are in constantly we are right. So can you list out those who have already corresponded with them and नहीं, they are देखो, not responding yet? नहीं, देखो, हम कोशिश शुरू से कर रहे हैं। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भी मिले हैं, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है, तो बात पहुंचाई है। लेकिन हर कोई चीज़ नई होती है तो एकदम एक्सेप्ट नहीं होती है। और जैसा बताया मैंने, अभी अंडर ग्रेजुएट की पहली बैच ही आई है, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, ये ऐसे जल्दी नहीं आएगा। अभी ये आपका ग्रेजुएशन का बैच चल रहा है? ये अभी पहला बैच, उसको कन्वोकेशन होगा अभी इस साल। तो आगे की प्लानिंग मास्टर तक की है? डेफिनेटली, हम तो इस साल शुरू कर रहे हैं मास्टर से एक कोर्स। तो सो
So can we say that in terms of funding the and meeting the challenges of COVID, Department of School of Physiotherapy is also one of the major part of your organization, and the you future looking forward to go ahead and ahead. Yes, yes. And to summarize the entire interview, I would like to know what your ultimate message so that the Department of School of Physiotherapy must be empowered and encouraged by the government agencies and you people also. Yeah, we have approached the various hospitals also, like LNJP, GB Pant, Safdarjung. We are all in touch with them, and they are all agreeing also, and they are doing it. They are taking our students. But we want in an official way the DGHS or the Delhi government health department directly issues the order that you directly connect with them. This is what is our expectation, so that then we really get strengthened. Thank you, sir.